It is visible, madam. Yes. Okay. So, namaste to all of you, Namaste, madam. and Namaste, thank madam. you Namaste. for it. Madam, Dr. Namaste, madam. Namaste, madam. Namaste, madam. And I'm very thankful for giving me this opportunity to talk to all of you. So, the subject for today is the education systems of ancient India. So, when we speak about Indian knowledge systems, unme se, when we look at systems, one of the systems is how this knowledge is passed from one generation to the next generation. So, these education systems, we will just take brief look at them. So, what we are going to look at is three different types of education systems. Um, One is the Gurukul system, where the students will go over there and learn. The other one is homeschooling, and then there is the apprentice. But for all of them, the primary education is common and the mandatory. So the first education is the primary education. And let's take a look at this primary education. So the primary education, it was compulsory almost, and it was common for all children, irrespective of the gender, irrespective of jati, irrespective of religion. Everybody received this education, and this started around at the age of 5. So this जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर होती है ना, एक प्रोसेस होती है एडमिशन प्रोसेस, तो वैसे ये एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए देर इज संस्कार कॉल्ड एज द विद्यारंभ संस्कार. So Vidyarambha Sanskar is like, when this Sanskar is done, the student, the 5-year-old child will pray to Ma Saraswati, will pray to God Ganesh, and then start by writing the first letters. And the first time these letters are written in a plate of rice. So this is the Vidyarambha Sanskar. And with after this Sanskar is done, a teacher will either come home. So if there are many small children at home, a teacher will come home and teach. Otherwise, these classes, this primary education is held in temples. तो टेम्पल्स के कोर्टयार्ड्स में, टेम्पल्स के जो अम, बाजू में जो रहते हैं छोटे शाला, तो वहाँ पे ये क्लासेस चलते थे. एंड द बेसिक स्किल्स आर taught. Basic skills which include, like, reading, writing, stock keeping, accounting, mathematics, simple arithmetical operations, and all these things. So this is the primary education system. And after this, around the age of 8 to 10, the student will decide, like, what the student or the family or the teachers, they will decide what will be the next steps for the student. So the next steps could either be homeschooling for some people who have their businesses at home, तो वो घर पे ही सीख लेंगे वो सब business. And then those who want to get into, like, doing some specific art or craftsmanship, then the person will have to become an art to become an artisan. One has to work under the hands of an artist, a master artist, so that is an apprentice. And otherwise there is the Gurukul system. So we will take a look at all the three systems. तो पहले तो ये होम स्कूलिंग देखते हैं. तो दिस अप्लाइड टू दोज हु हैव अ बिजनेस एट होम. तो लाइक दोज हु आर मर्चेंट्स है, फार्मर्स है, क्राफ्ट्समैन है, जो कुछ बनाते हैं एंड जो बना के, लाइक, दे सेल इट, और उस पे उनका लाइवलीहुड चलता है. तो दोज इन दोज फैमिलीज, जनरली चिल्ड्रन विल stay at home and learn from their parents and grandparents and uncles. तो ये हुआ करता था. दिस इज द होम स्कूलिंग. तो इसमें दिस सिस्टम हैज सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट्स ओन. तो कॉन्स तो ऑब्वियस है, लाइक, यू वांट टू लर्न समथिंग एल्स, यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, द फ्रीडम इज नॉट देयर. तो ऐसे कॉन्स तो है ही. उसके साथ साथ प्रोज भी ऐसे है कि वन स्टार्ट्स लर्निंग एट अ वेरी अर्ली एज, and children get a ready-made platform कि
आपका वेंडर बेस रेडी है, आपका मार्केट प्लेस रेडी है, आपके क्या बोलते हैं स्किल्स, आपको यू आर डायरेक्टली लर्निंग इट फ्रॉम योर फादर। तो ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के रखा दे, नो ट्रेड सीक्रेट्स, मतलब वो जो होगा वो इट विल स्टे इन द फैमिली, एंड it's a guaranteed livelihood. So the children get all of this ready made, and very early in life they become uh, they start earning for themselves. तो ये एक ब्रांच ऑफ लर्निंग हुआ करता था। तो इसमें और एक बात ऐसे होती थी, होम स्कूलिंग, इफ आई कॉल इट, यूज द न्यू, दिस इज द न्यू टर्म, लेटेस्ट टर्म है ना, मॉडर्न टर्म होम स्कूलिंग। तो इसमें और एक बात ये ऐसे होता था कि जनरली शादियां भी होती थी तो एक ही कम्युनिटी में हुआ करती थी कि इफ आई वांट टू ब्रिंग होम डॉटर इन लॉ, आई विल वांट, if I'm in the business of textile, I will want somebody from the textile industry itself, so that वो बच्ची ने ऑलरेडी सीख लिया है। तो लाइक दिस, ऑल दीज थिंग्स लाइक एक ही कम्युनिटी में शादी होनी चाहिए, and then the communities coming together because they have the same problems, they have the same market, they have the same क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल भी उनका, दे आर प्रोक्यूरिंग इट फ्रॉम सेम प्लेसेस, तो दे जनरली टेंड टू कम टुगेदर। तो ये तो आजकल भी होता है कि इफ वी हैव लाइक कॉन्फ्रेंसेस, तो इट विल बी लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ सम टीचर्स, उसमें भी देयर विल बी सब जातीज, like it will be a conference of IKS teachers, so it will be only for them because they are focusing on one particular area or something like that. तो ये एक मामला है which is learning at home. And then there is becoming an apprentice. So one becomes an apprentice with generally with a guild. तो जिसे श्रेणी कहा करते थे, तो श्रेणी का एक मास्टर है, and what they do is they take up assignments and they will work, मतलब यहाँ पे suppose there is a temple that has to be built, और यहाँ पे suppose there is a palace that is to be built, तो या यहाँ पे कोई sculptures बनवाने हैं, so they will go from place to place, they will do that assignments, they will get paid, and it will be for the whole team. तो ये जो ऐसे गिल्ड्स हुआ करते थे, श्रेणी हुआ करती थी, उसका एक मास्टर हुआ करता था, तो द बच्चा विल गो एंड स्टार्ट लर्निंग देयर ऑन द जॉब। तो यहाँ पे क्या होता है कि दे रिसीव दैट ट्रेनिंग फ्रॉम द मास्टर। तो पहले तो वो मास्टर एक गंडा बांधता है कि ये हम सब जगह देखते हैं, भारत की जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक धागा बांधने की रीत है कि हम इसमें भी देखते हैं, संगीत के घराने में या कोई नृत्य सीख रहा है किसी घराने का, तो गुरु एक धागा बांधते हैं, है ना, गंडा बांधायचा असंच म्हणतात त्याला. सो इवन इन दीज श्रेणीज ये हुआ करता था कि गंडा बांधते थे, उसको बोलते हैं ना, गुरु का गंडा बांध लिया है। तो ये धागा है, ये धागा जो है वो गुरु और शिष्य के बीच में है कि इट्स अ क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी प्योर रिलेशनशिप वेयर द गुरु इज लाइक गुरुर देवो भव। इस प्रकार का उन दोनों में एक रिलेशनशिप है। और इसमें ये भी है कि जैसे द गुरु इज लाइक अ पेरेंट, क्योंकि ये बच्चा अभी उनके ही पास रहने वाला है। पहला जो था होम स्कूलिंग, उसमें पेरेंट बिकेम द गुरु। ये जो अप्रेंटाइसशिप है या फिर गुरुकुल सिस्टम है, यहाँ पे हमको दूसरा टाइप दिखाई देता है कि जिसमें द गुरु बिकम्स द पेरेंट, एंड ये बच्चा जो है ही विल स्टे विद दैट श्रेणी, ही विल गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लर्न अलोंग, वर्क एंड लर्न अलोंग। इस तरह से ये सिस्टम हुआ करती थी, विच इज दी अप्रेंटाइसशिप। And then the third system which we know, which is very popular also, you can say, is the Gurukul system. तो ये गुरुकुल सिस्टम में जस्ट अप्रेंटाइसशिप में भी यही हुआ करता था कि बच्चा विल गो एंड स्टे विद दैट गिल्ड,
और गुरुकुल में भी यही है कि द चाइल्ड विल गो एंड स्टे विद द at the guru's place, and he becomes a part of the guru's family, hence that, like, gurukul become a part of the guru's family. एंड ये जो एजुकेशन है, दिस एजुकेशन इज फ्रॉम हाई स्कूल टू ग्रेजुएशन, की जो प्राइमरी एजुकेशन तो सबका कॉमन हो गया है, इसके बाद का जो एजुकेशन है ये गुरुकुल में मिलता है। तो दिस इज लाइक हाई स्कूल एजुकेशन, इट इज अ क्लासरूम एजुकेशन। देर इज there are multiple teachers gurukul mein, there are multiple teachers who will be teaching different subjects. And again, like with any kind of school, this will also have a entry process, exit process. तो एंट्री एडमिशन का प्रोसेस इज द उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार इन अर्लियर डेज इट यूज टू बी अ वेरी सिंपल थिंग, अ वेरी सिंपल थिंग कि जो गुरुकुल में बच्चा जाएगा वहाँ के 8 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो वहाँ के गुरु और 8 उनके स्टूडेंट्स, उनको बुलाया जाता है। और ये बच्चे को ये धागा, अगेन यू विल सी दिस धागा इज अगेन, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं या जनेऊ कहते हैं, ये दिस इज द दैट धागा बिटवीन द गुरु एंड द चाइल्ड। और ये उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन संस्कार के बाद में एजुकेशन शुरुआत हो जाएगा। तो उसी गुरुकुल के जो 8 बच्चों को भी बुलाया जाता है। तो इट इज लाइक building a friendship even before the child goes to the gurukul. So he is not going to a place which where he knows nobody. So he will of course know a few students, and he will be going along with them, along with the guru, to the gurukul. And after the education is over, today we have the convocation. So instead there used to be a स्नातक संस्कार। तो स्नातक संस्कार इज गुरु डिक्लेयरिंग दैट इसने जो सीखना चाहिए था वो अच्छे से सीख लिया है, ही इज नाउ रेडी टू गो इनटू द बिग वर्ल्ड। तो ये भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। और ये जो परंपरा है ये सिर्फ हिंदुओं में है ऐसे नहीं, तो जैन में भी है, बौद्ध लोगों में भी है, सिखों में भी है, कि गुरु को ही भगवान माना गया है। तो जैनों में तीर्थंकर कहा जाएगा, बुद्धिस्ट में उनको बोधिसत्व कहा जाएगा, या फिर सिखों में भी तो गुरु ही कहते हैं। तो ये भारत के जो भी पंथ है वो सब पंथों में ये गुरु शिष्य परंपरा मान्यता प्राप्त है। एंड ऑल ऑफ दिस पंथ दे विल बिलीव कि आपको शिक्षा तो गुरु से ही मिलती है। और फिर ये गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे उनके लिए छुट्टी तो महीने में 2 बार हुआ करती थी। हमको आजकल हर संडे छुट्टी होती है। तो पहले इट यूज टू बी अमावस्या एंड पूर्णिमा। So these 2 days holiday because those were actually literally holy days, कि इन 2 दिनों को ये करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ भी होता है, फेस्टिवल भी होता है, सेलिब्रेशन भी होता है। आज भी यदि हम देखें तो कई सारे पूर्णिमा भी सेलिब्रेट। तो वेदर इट इज होली पूर्णिमा, वेदर इट इज राखी पूर्णिमा, वेदर इट इज नारळी पूर्णिमा, whether it is Vata Purnima, whether it is Guru Purnima, whether it is Datta Jayanti, whether it is Hanuman Jayanti, all of them come on Purnima. So almost every Purnima we celebrate, and that is why it is a holy day. And those day, Amausya, yeah, the day after Amausya, the first day, Pratipada, these two will be the holidays. And that those days are called as अनाध्याय दिवस, कि उस दिन अभ्यास नहीं करना है, अध्याय नहीं करना है, छुट्टी है। तो फिर ये गुरुकुल मतलब ये जो स्टडिंग का पार्ट है लाइफ का, दिस इज बेसिकली द ब्रह्मचर्य आश्रम, कि 4 आश्रम माने गए हैं। उसमें से पहला ब्रह्मचर्य है कि जब सीखना है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है जहाँ पे घर गृहस्थी बसाते हैं, एंड इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल
time in life where you take up so many responsibilities, you fulfill your ambitions, etc. So the most important and the longest ashram in life is the grahastha ashram, and after that there is the retired life, which is vanaprastha ashram. So nowadays we don't literally retire to the forest, but in those days people would, like, go away somewhere, and they would do this literally, going to the vana. And then there was the sannyas ashram also, but the sannyas ashram is an optional ashram, and it can be taken even after brahmacharya ashram. So not necessary कि एक दो तीन चार ऐसे ही आ जाए वो. तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम इज बेसिकली आश्रम इटसेल्फ मीन्स कि जहाँ पे श्रम करना पड़ता है. एक ये मीनिंग हुआ, दूसरा ये मीनिंग हुआ कि आश्रम इज अ टेम्पररी प्लेस. तो ये जो अपने जीवन की यात्रा है, ये जीवन की यात्रा में ये तीन चार टेम्पररी प्लेसेस है वेयर ईच वन ऑफ अस विल स्पेंड सम टाइम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट. So the first place where each one will take a halt at is the brahmacharya ashram. And ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रूटीन बहुत ही रिगरस है. यू वन वेक्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको कुछ काम करना है, वो जहाँ पे आप रहते हैं, वो गुरु के आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ सेवा करनी है, आपको साफ सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं, कुकिंग में हेल्प करना है, फायरवुड लेके आना है, ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स the student will have to do. Keep the classrooms clean and all of this, and wake up very early, do all your yoga sadhana and everything, and then you come and sit in the class. And after the classes are over, in the evening there will be debates, there will be discussions between, like, peer discussions, peer group में चर्चा होगी. And then they will also have, they will have some plays like, सुभाषित बताना एक दूसरे को, या कूट प्रश्न, प्रहेलिका, quiz and all of this. So this would be the Gurukul routine right from morning to night. And there are some things which we do not follow today in schools or even in colleges. So I would just like to ask you, all of you, you have been teaching and you have been in this एजुकेशन सिस्टम. आपका क्या अनुभव रहा है, कैसे होता है स्टूडेंट्स का गुरु के प्रति और इंस्टीट्यूट के प्रति कैसा रिलेशन रहता है? व्हाट हैव यू learned in your careers? Can you share any of your learnings? मैडम बहुत कम बच्चे रहते हैं ऐसे, हाँ. जिनको कॉलेज का, महाविद्यालय का तो अभिमान रहता है, संस्था का अभिमान रहता है, गुरु का अभिमान रहता है. पहले जी. कैसे सब स्टूडेंट रहते हैं, उनको गुरु का और इंस्टीट्यूट का अभिमान रहता था. मैं तो अभी नहीं. आजकल हाँ, मैं तो आजकल ऐसे सुनती हूँ कि 10वीं का जो सेंड ऑफ होता है, तो बच्चे तो तोड़फोड़ करते हैं लास्ट डे स्कूल्स में. ऐसा भी सुन रही हूँ मैं. यस मैम. अजी महेश सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर. एक there is one school in Pune. I'll get the name. तो वहाँ पे क्या करते हैं, किया है उन्होंने कि जो भी साफ सफाई है वो बच्चों ने ही करना है. बच्चों ने ही अपना अपना क्लासरूम साफ रखना है. आजू बाजू का जो ग्राउंड है वो भी बच्चों ने ही साफ रखना है. तो एवरी क्लास गेट्स, like, turn by turn they are supposed to keep the school clean and all. तो वहाँ का मतलब जो एक्सपीरियंस है बच्चों के बारे में वो बहुत अलग है. दे फील कि वो स्कूल अपनी है, हमने ये अच्छा रखना चाहिए. And this is not something which is like, exactly Japan also follows this. विजय जी, आपने बहुत ही, you have pointed it out कि ये यस we मैम. have
और जब ये होगा कि बच्चों को स्कूल अपना लगेगा, तभी ऐसे होगा कि आगे जाके ये जब बाहर आएंगे तो दे विल फील कि ये कंट्री भी अपना है, कि यहाँ पे जो बसेस है, ट्रेन्स है, रास्ते है, वो हमको ही अच्छे रखने हैं। ये तभी होगा जब ये स्कूल में होगा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बचपन से ये शुरुआत करनी चाहिए कि बच्चों को लगे कि ये अपना है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इफ देर आर मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन, ऐसे नहीं कि ये सबका सब हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें से कई सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो हम वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम। तो या दिस इज वन ऑफ देम व्हिच आई रियली फील कि अपनापन लगने के लिए वो जो एक सेवा भाव आना चाहिए। अगर हम सेवा करते हैं तभी वो अपनापन आ जाता है, और ये it has to come somewhere in our education system. Then there are a few other features of this. Sir, you want to share anything, Avinash ji? जी जी जी, एक्चुअली मैडम हम प्राइमरी में जिला परिषद में पढ़े हैं, गांव से आए हैं। हाँ गांव में हम जब स्कूल में जाते थे मैडम, तो खुद पहले साफ सफाई करते थे पूरे स्कूल की, और चटाइयाँ जो बिछाने का काम भी हम ही करते थे, हाँ और बेल लगाने का काम भी हमें को ही करना पड़ता था, हमारे टीचर बताते थे। तो 15 अगस्त या 26 जनवरी जब भी होती थी तो उस त्योहार में पूरा परिसर स्वच्छ करना, पूरा कचरा जो भी है, ये हाँ सब काम करते थे। आज के जमाने में जो एजुकेशन सिस्टम आई है ज्यादा ही मॉडर्न है, तो बच्चों को खुद ही तो कार्यक्रम नहीं दिखते, तो ये करने की आज आवश्यकता है। वैसे मैं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी 10 साल से रहा हूँ, तो बच्चों में काफी परिवर्तन इस माध्यम से आता है। और अच्छे, मैंने बदमाश जो बच्चे रहते थे उनको भी ठीक करने का काम मैंने किया, वो भी प्रयोग मैं यशस्वी कर चुका हूँ। तो संस्कार बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल जब तक बच्चे खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। जी जी, मैं तो देखती हूँ कि कॉलेज में ना जो ये सब ऑफलोड कर दिया है कि साफ सफाई जो है वो किसी और को काम दे दिया है, और बच्चों को लगता है कि इट इज द राइट कि हमको साफ सुथरा क्लासरूम मिल जाए, ये अपना राइट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगना चाहिए। एंड these are some things that we should really think about and see, like, how we can implement it in in our schools, in our education ऐसे। तो another thing about this education system, the Gurukul education system, was कि it did not come under any state rule ऐसे, कि most of the times the ashrams would be the away from cities, and they would be mostly in, like, forest, very serene atmosphere, somewhere near uh, river banks and all, and they were not dependent on like, the political powers. So they were not even controlled by any government body, and though they received donations from merchants and traders and kings, and even from the smallest farmers and people who lived around, तो ये एजुकेशन ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड चिल्ड्रन गॉट इट फॉर फ्री। तो even when children got it for free, it is the society which is taking care of that education system. Everybody in their own way is giving something for that school to run. और उसमें something was like, many some of the ashrams, they would have their own farms, and the students would work on the farms and grow the grains and etc. and get their own food. But most of the ashrams were like this ki they were situated nearby towns, and the student would go to 5 houses and get diksha. हाँ जी, गजानन जी आप कुछ कह रहे हैं सर? नहीं मैडम। तो the child would go to 5 houses, and random 5 houses, not the same house every day. So they will go to different houses, get भिक्षा। तो वो जो एक है कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना जो आ जाती है,
वो आई थिंक वो भिक्षा से आ जाती है कि आई एम रिसीविंग समथिंग, और जितना मिलता है उतना, कुछ एक दिन कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, वॉट एवर, बींग सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड। तो ये भी एक इस एजुकेशन का पार्ट हुआ करता था, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट द एजुकेशन वाज फ्री, एंड ओनली दो स्टूडेंट्स वुड स्टे इन द स्कूल। एंड ये तो हार्डशिप है, getting up early, doing your yoga sadhana, you know, doing workout so that you build your body, doing so much work, going and begging for food. ये सब who will do that? Only those will students will do जिनको ज्ञान की प्यास है. Only those will stay in the गुरुकुल. कि जिनको ये कष्ट क्या बोलते हैं, अपने ज्ञान के विद्या, जिस विद्या के लिए ये कर रहे हैं उस विद्या के सामने ये कष्ट कुछ नहीं लगते. ओनली दोज विल स्टे इन द गुरुकुल. एंड once the education is over, then the student gives guru dakshina. And guru dakshina is like you go every guru purnima to your ashram, and you give the guru dakshina. So it is like, you know, if and when possible. तो अभी ये उल्टा हो गया है, यू पे अप फ्रंट एंड देन यू गेट द एजुकेशन. तो much much difference in the view also. Madam, is it limited to a particular sections in a society or is it is for all the sections? हाँ, आई एम जस्ट कमिंग टू इट वेंकटेश जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. ये दिस इज समटाइम इन 1940s प्रोबेबली, कि एक बार महात्मा गांधी ने बात की थी. तो महात्मा गांधी सेड कि he said this about the British rule. Ki before the British came, India was a literate country. It was a country of literate people. And after the British came and they broke the Indian education system and they imposed the new Western education system, that was the time when, like, you know, all the education deteriorated and people became illiterate. This is what he said. And Gandhiji, these are the words of Gandhiji. He said that the earlier education system of India was a beautiful tree which was destroyed by the British. तो महात्मा गांधी के एक डिसाइपल हुआ करते थे, धर्मपाल जी. तो धर्मपाल जी heard this from गांधी जी and he thought that he should find out कि ये जो कहा है तो इसमें क्या है, क्या सच है, क्या what is the evidence for this. So धर्मपाल जी was in England, लंदन में थे वो. तो लंदन में he went to the British Library and the British Archives and he collected all the reports of British India. तो ये तब की बात है 18th सेंचुरी की, कि 1757 में जैसे बैटल ऑफ प्लासी जीत गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहां से थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश रूल की तो शुरुआत हो गई, फॉर्मल शुरुआत हो गई. तो देन इन दैट टाइम आफ्टर 1757 दे स्टार्टेड डूइंग अ सर्वे इन इंडिया. मल्टीपल सर्वेस किए उन्होंने. दीज पीपल दे पुट देयर माइंड to a very good use, and they started studying India like nobody else had done, and very क्या बोलते हैं, very careful, very detailed, very meticulous studies they carried out. So this study about the education system of India, they carried it out in Bengal, in Punjab, in Bombay Presidency, in Madras Presidency, all over India. And what they came up with was that there was this is from the second half of 18th century. There was not one village which did not have a school. ये पहली बात है. Every village had a school, at least one school. And literally this report says that in Bengal Bihar area, so when I say Bengal, it is both east and west Bengal, the undivided Bengal. So the Bengal Bihar area, it had 1 lakh schools. Or this is the time when Britain did not have really good schools. ये तब की बात है, and they were really surprised to see this. They were surprised to see this. Even today when we think about it, it is surprising.
तो देयर वर सो मेनी स्कूल्स। अच्छा, फिर और इन स्कूलों में दे हैव रिटन एवरीथिंग कि ये स्कूल में कितने क्लासेस हुआ करते थे, कौन से व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वाज लर्निंग ओवर देयर, उनकी जाति कौन सी थी, उनका जेंडर क्या है। तो दे कम अप विद दिस, दे कम अप कि this is a page from the book written by Dharmapal ji. The book is called The Beautiful Tree, and this book is published by Voice of India. It is available as a PDF for free, and this is, I think, a must that everybody who is in teaching should read this book. So this is a one table. He has given so much data in this book. So he has given, like, how many Brahmin students were learning over there, how many Vaishya and how many Shudra students, how many Muslim students, how many boys, how many girls. And see this, this is from Malabar and Vishakhapatnam. And you will see that there are all types of students who are learning. So this is until the 18th century, until the end of 18th century. This is the education system of India, which is open to all, विच इज एंड इसमें और भी एक बात है, हम थोड़ा इसके पहले जाते हैं, 18th सेंचुरी के थोड़ा पहले जाते हैं, तो व्हाट वी फाइंड इज कि दिस इज फ्रॉम पाणिनि. तो पाणिनि इज गिविंग, ही इज टीचिंग ग्रामर एंड ही इज गिविंग एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स ऑफ, like, making sentences, verbs, noun, etc., whatever examples he is giving. So in that we come across words not only for male students, but there is a word for women, female students as well. So he has words like, chhatra and chhatra. English mein there is only one word, student, but we have chhatra and chhatra. There is also chhatravas and chatrishala. So there were hostels for girls as well. तो ये बात है भारत के एजुकेशन सिस्टम की. एंड इवन देर आर नॉट जस्ट मेन टीचर्स, टीचर्स में भी वुमेन टीचर्स हुआ करते थे, कि जैसे अध्यापक है वैसे अध्यापिका भी है, जैसे आचार्य है वैसे आचार्या भी है, जैसे ऋषि है वैसे ऋषिका भी है. तो ये दिस इज द पिक्चर ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि जिसमें जाति नहीं है, जिसमें जेंडर मतलब क्या बोलते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं आजकल, ये इक्वालिटी हमको यहाँ पे वी सी इट implemented in the Indian education system. Any questions over here? Any comments you would like to make? Okay. मैडम जी अभी जैसे कि हम भी जो छात्र है, जैसे स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट का रेशियो अभी ज्यादा है कंपेरेटिवली, जब उस जमाने के जैसे कि हम देखिए छात्र और छात्रा का कॉन्सेप्ट था. क्या मैडम ये अपने एजुकेशन सिस्टम में छात्राओं का उतना परसेंटेज था क्या एज कम्पेयर टू छात्र? आपको क्या लगता है मैडम इस विषय पे? हाँ, बिल्कुल पुराने जमाने के तो ऐसे कोई, हाँ जी, पुराना डेटा तो है नहीं, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल ट्री में जो डेटा मिलता है उससे पता चलता है कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ वे लर्निंग. लेकिन ये प्रमाण आप देखिए, गर्ल स्टूडेंट्स आर लेस देन बॉयज, तो ये इट इज यस मैडम, तो ये कम ज्यादा है. लेकिन the thing is it is open, the girls are also there, which is but are they really allowed to get education in our voltage system? The ratio it is given, the percentage number is also given here. yes. But as such, I know that madam, the girls were not allowed to to get education in our earlier system of education. हाँ, तो यही the thing is, ये तो अपने रिकॉर्ड्स नहीं है, ये तो ब्रिटिश ने बनाए हुए रिकॉर्ड्स है. इट इज देयर रिपोर्ट्स एंड दीज आर ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट्स. They have physically gone to all these schools and taken the numbers and noted it down. तो मतलब ये जो है ना कि girls were not allowed to learn,
and not everybody in the society was allowed to learn. ये constructs थोड़े बाद के हैं. So when we go to the roots and start learning exactly क्या है, तो ये हमने करना चाहिए. And there have been times, of course, there have been times in history, there has been discrimination as well. So, मॅडम हाँ जी, हॅलो जी. मॅडम 1848 मध्ये महात्मा फुलेंनी मुलींची शाळा काढली हम्म. बरोबर मग त्याचा अगोदर ते आकडेवारी कसं काय हाँ, see, the thing is 1757 के बाद में slowly the Indian Gurukul system came into उसके पहले से भी, because we have been facing invasion from uh, for 1000 years or so. So there have been attacks on the education, मतलब education system is also like deteriorating. So by the end of 18th century, uh, 1818 से तो पूरा ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया. So by then we had lost all of this. And after we lost this, what was implemented was the British education system. The British education system was only for boys. So that is when where we start seeing कि गर्ल्स के लिए अलग सी स्कूल निकालनी पड़ती है. तो ये this is so, मतलब this is eye opening. This is really eye opening कि the Indian girls school starts, मतलब ब्रिटिश लोग अपने वुमेन को नहीं सिखाते थे back in England. झाला का तुम्हाला? Yeah, they didn't have schools, and then here also they built schools which were for boys only. So this is what has happened. Somebody else also had a question, if I'm not wrong. जी, मिलिंद कुमार जी. मैडम कुछ एग्जाम्पल्स है क्या गुरुकुल पद्धति में महिलाओं ने शिक्षा ली हो या बच्चियों ने शिक्षा ली हो, ऐसे एग्जाम्पल्स है आपके पास? हाँ जी, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैडम महिला लेखकों के भी एग्जाम्पल बताइए. जी, बिल्कुल बताते हैं. तो पहले तो हम देखते हैं महिला ऋषिकाओं के एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो मैं तो बहुत प्राचीन समय में जा रही हूँ. जब हम ऋग्वेद में जाते हैं तो ऋग्वेद में हमें कई सारी ऋषिकाएं दिखाई देती है जिन्होंने सूक्त लिखे हैं. तो ऋग्वेद के जो सूक्त लिखे हैं उसमें हमें आई थिंक देयर आर अबाउट 32 ऋषिकास जिन्होंने सूक्त लिखे हैं. और उसमें से एक ऋषिका है जिन्होंने अपने सूक्त में लिखा है कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली. she says मैं मूर्धा हूँ, like I am the head of the family, I am the flag of the family, I take the decisions. And she is describing her son and daughter. She says my son is very good and she is like उसका क्या बोलते हैं कौतुक करतात ना तसं ते मुलाचं कौतुक केलं. And then she says my daughter, क्या मैं मेरे डॉटर के बारे में क्या बताऊं, she is so great, she is विराट. इतना आपने मतलब लड़के से ज्यादा अपनी लड़की का गुणगान किया है. ये हमको ऋग्वेद में दिखाई देता है. एंड देन व्हेन वी कम टू द उपनिषदिक एरा वी फाइंड ब्रह्मवादिनीज like Gargi and Maitreyi. So these are just two examples, but Gargi and Maitreyi they are, वो जो एक प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद का, उसमें वो प्रसंग ऐसा है कि राजा जनक ने एक सभा बुलाई है विद्वानों की. तो वो सभा में गार्गी is also invited. So like the woman is also recognized. She is not just allowed to learn or something, but she is imparted education, and once she is learning, she is also recognized as a learned person. And in that सभा वो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक बहुत बड़ा संवाद होता है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड है. तो ये हमको उपनिषदों में मिलता है. इसके बाद में हमको और एक रानी है, I will get her name as we go ahead. तो she is ब्रह्मज्ञानी रानी. और वो जब बच्चों को सुलाती है तो वो जो पालना गाती है तो वो गाना ब्रह्म ज्ञान का गाना है. And it has been recorded, like it has been documented and written.
ऐसे है। उसके बाद में हम जब देखते हैं तो शंकराचार्य का डिबेट विथ मंडन मिश्रा, ये भारत के जो सबसे बड़े दो ज्ञानी हैं, एक कर्म कांड के ज्ञानी और एक ज्ञान कांड के ज्ञानी, इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है, उस वाद का जो जज है, वो जज तो उनकी पत्नी है भारती देवी। तो ये हमको, ये जो परंपरा है, ये परंपरा हमको प्राचीन समय से दिखाई देती है, बिल्कुल प्राचीन समय से दिखाई देती मॅडम है। मे आय ऍड लिटिल बिट? हाँ जी, बिल्कुल प्लीज। मॅडम बुद्ध साहित्यात थेरी गाथा ज्या लिहिलेल्या आहेत त्या बुद्ध महिला आहेत, भिक्षुणी आहेत. ही एक मला ऍडिशन करायची होती. आणि गुप्त काळामध्ये किशोरिका आणि वृज्जिका या 2 महिलांनी मिळून 11 अंकाचं संस्कृत नाटक लिहिलंय. ओके, थँक्यू. वेलकम मॅम. येस, ह्याचं नाव काय आहे नाटकाचं? तेच मला आता रिकलेक्ट होत नाही. मी माझ्या नोट्स काढल्यावर मला कळेल. मी नक्की सांगेन ते. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई लव टू नो दैट। इवन आपने पूछा था किसी ने लेखिका, महिला लेखिका, तो आपने अनघा जी, आपने एक बताया। इसके साथ साथ फ्रॉम 15th सेंचुरी वी हैव अ लेखिका कॉल्ड मोल्ला। तो मोल्ला इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड शी इज अ पोएट। तो she is not only popular among the people, but she is also honored as a great kavi in the courts of Vijayanagar kings. Yeah, so matlab in fact, if we go to the records of Vijayanagar, we will find that women have been appointed in various capacities. They are appointed as bodyguards. They also do the work of porters. पहलवान जो बोलते हैं वह मल्ल, वैसे भी है महिलाएं। जजेस है, टीचर्स क्या है, ये सब टेकिंग पार्ट इन दिस, एंड वी आल्सो सी दिस इन स्कल्पचर्स। तो वुमेन हैव बीन रिसीविंग एजुकेशन, और ये तो 15th सेंचुरी तक की बात चल रही है, तो मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, क्वाइट रीसेंट। Have I answered sufficient? जी। हाँ जी। आणखी एक डाऊट येतो मॅडम की ब्राह्मणांपेक्षा इतर विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त दाखवली इथे या आकडेवारीमध्ये, ते कसं काय? कारण इतर लोकांना शिकायला बंदी होती. I don't know that bandi came. I don't know whether there was bandi or not. But if you look at the काय म्हणतात, the composition of the people and the population, so obviously Brahmin are less, so there will be less in number in schools also. तो ये बात it has been like this. It has been like this. मैं आप सभी को आई विल रियली से कि आपने ये पुस्तक पढ़ना चाहिए, धर्मपाल का द ब्यूटीफुल ट्री। इट्स अ वेरी गुड बुक एंड इट कम्स विथ द क्या बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेस, जहाँ से ऑल ऑफ दिस डेटा हैज कम। सो लेट अस मूव अहेड। तो ये एक डच पेंटर का पेंटिंग है, गुरुकुल इन इंडिया। ये पाठशाला है, तो शाला मीन्स अ रेक्टेंगुलर हॉल। तो गौशाला है तो इट इज अ रेक्टेंगुलर हॉल फॉर काउस। पाठशाला है तो यहाँ पे पाठ दिए जाते हैं इन अ रेक्टेंगुलर हॉल। तो ये एक पाठशाला का चित्र है फ्रॉम वेरी 18th सेंचुरी। तो ये जो हमने अब तक देखा, ये सब हायर एजुकेशन हो गया, मतलब ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन हो गया। इसके आगे का जो एजुकेशन है, मास्टर्स जो करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, इसके लिए वी हैड विद्यापीठ। तो ये जो विद्यापीठ है, कई सारे विद्यापीठ थे। हमको नॉर्थ में, मतलब कश्मीर में देयर इज द शारदा पीठ and Takshashila. These were in the area of Kashmir, North Pakistan, Afghanistan, that area. Takshashila तो
बहुत ही पॉपुलर है। एंड देन देर इज वाराणसी का जो विद्यापीठ है, ये तो लाइक यू नो इवन टुडे इट इज गोइंग ऑन। नाउ इट इज नॉट अ विद्यापीठ बट इट इज लाइक सो मेनी कॉलेजेस ओवर देयर। फिर प्रयागराज में विद्यापीठ हुआ करते थे, सोमपुरा में है, नासिक में है, महाराष्ट्र में when we come it is नासिक में है, वाई में है, कृष्णा नदी के पास में। साउथ में जाते हैं तो मदुराई में, कांची में है। एंड देयर वाज अ विद्यापीठ इन सुमात्रा एज वेल, मतलब इंडोनेशिया में। सो देयर वाज अ विद्यापीठ इन इंडोनेशिया where Sanskrit was taught, and not just Sanskrit but all the education which is available in Sanskrit it was taught. तो ये तो कई सारे विद्यापीठ जो है बंगाल एंड बिहार के एरिया में है, जैसे विक्रमशिला है, जगदल्ला है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये सारे बंगाल बिहार के एरिया में। एंड इतना ब्यूटीफुल वर्णन हमको इसका मिलता है कि ये वर्णन है तक्षशिला का। तो तक्षशिला के विद्यापीठ का वर्णन किया है आई थिंक श्वानसांग ने। वो कहता है कि यहाँ पे आते हैं बच्चे तो दे हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम सबके सब तो पास होते नहीं है, तो वेरी फ्यू लाइक यू नो 5% 10% दे आर एबल टू क्लियर। एंड देन जो पास नहीं होते तो दे आर क्राइंग। और वो हा म्हणजे सबस्क्रिप्शन किंवा मला ड्राफ्टिंग करताना हे लागेल ना मला फोन पे। नमिता मॅडम प्लीज माइक बंद करा। तो दे विल क्राई और उनके आंसुओं का एक पूल बन जाएगा वहां पे। तो दिस इज एग्जैजरेटेड वर्णन बट हमको ये ध्यान में आता है। ऐसे ही नालंदा का भी है, नालंदा के यूनिवर्सिटी का भी दे वुड हैव एन एंट्रेंस एग्जाम। तो वो एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए या तैयारी करने के लिए वहां पे क्लासेस चलते थे। नथिंग डिफरेंट फ्रॉम टुडे। क्लासेस चलते थे तो people came from China, the people came from Southeast Asian countries, people came from Central Asia, from all over India, Tibet, Nepal, Sri Lanka, all these places they came to various universities. और ये जब नालंदा की मैं ये बात कर रही हूँ तो एंट्रेंस एग्जाम दे दी, बट सपोज दे डोंट गेट एडमिशन इनटू नालंदा, then they would go to other universities propped up around नालंदा, कि जैसे जगदल्ला है या सोमपुरा है। सो देयर वर वेरियस यूनिवर्सिटीज प्रॉप्ड अप अराउंड नालंदा कि ये नहीं मिली तो लाइक यू नो इफ नॉट द फर्स्ट वन आई विल गेट द सेकंड वन, द थर्ड वन, ऐसे करके। तो नॉट अ वेरी डिफरेंट पिक्चर फ्रॉम टुडे। आज भी हम ऐसे ही देखते हैं कि लाइक यू नो व्हेन वी अप्लाई फॉर डिफरेंट कॉलेजेस वी विल अप्लाई टू 2-3 डिफरेंट कॉलेज, 5-10 डिफरेंट कॉलेजेस, कि सबसे पहले तो ये चॉइस है, ये नहीं मिला तो ये, नहीं मिला तो ये, ऐसे। So similar things we are seeing over here. There was one student who came from China, and his name is It Singh. तो ये जो स्टूडेंट है, he came from China to learn in Nalanda, and then he wrote back to other students, fellow students who want to come to India. तो उनके लिए उसने लिखा है कि when you come to India to study, what you should do is first you should go to Sumatra, तो इंडोनेशिया में you should go to Indonesia, वहाँ पे you should learn Sanskrit and then you come to India. तो then what it will be much easier for you. तो जैसे आजकल भारत में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलते थे, वैसे उस जमाने में संस्कृत स्पीकिंग क्लासेस आउटसाइड ऑफ इंडिया चलते थे। तो ये एक इंडोनेशिया का संस्कृत स्पीकिंग क्लास का लाइक यू नो एक ये एग्जांपल है। एंड पीपल स्टडीड नॉट जस्ट संस्कृत बट दे आल्सो लर्न द स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया, एंड दे लर्न संस्कृत and the scripts of India because the knowledge was in these languages, the knowledge was in these books. तो जब ऐसा होगा कि like you know we have knowledge in our own languages, तभी people will start तभी people will start speaking our own languages. So we should start creating more and more literature in our own mother tongues, and the literature should not be only in terms of क्या बोलते हैं, in terms of literature, but also in terms of like you know science है, technology है, physics है, mathematics है।
ये टाइप का नॉलेज ऑल्सो वी शुड स्टार्ट क्रिएटिंग इट इन आवर ओन लैंग्वेजेस, तभी पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू इट. So going ahead, yeah, we have like this is a picture of the Nalanda University. तो वहाँ का ये बस फाउंडेशन पर देख रहे हैं हम. All of these universities जो देखे हमने लास्ट स्लाइड में, most of these universities housed more than 10,000 students. And यहाँ पे नालंदा का तो लाइब्रेरी विशेष फेमस था because it had 3 sections, 3 buildings, and one of these buildings was a 9-storied building. So this is from like the 4th 5th century से आगे का हम देखते हैं. So far about like what are the different colleges and universities and the different education systems of India. इसके साथ साथ how should a teacher be? तो टीचर के भी गुणों के बारे में बताया है कि गुरु कौन है. तो टीचर्स के लिए नाम भी अलग अलग है कि जैसे शिक्षक इज फॉर somebody who teaches, अध्यापक इज जो अध्यापन करता है वो अध्यापक है. उपाध्याय जो है वो पास आके सिखाता है, तो somebody who goes to home tuitions जो करते हैं, he is उपाध्याय. आचार्य इज somebody की जिसका आचरण देख के हम सीखेंगे, वो आचार्य है. एंड देन गुरु इज द आध्यात्मिक टर्म एक्चुअली, कि जो अज्ञान का नाश करता है. तो ये अलग अलग नाम है शिक्षकों के लिए, अलग अलग टाइटल्स है बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्टली टीचिंग इज डन. और गुरु किसे कहेंगे, तो जो शिष्य के हित के बारे में सतत चिंतन करता है वो गुरु कहलाता है. और फिर वो शिक्षक कैसे होना चाहिए कि सद्वर्तन, चारित्र्य के जैसे इतना इम्पोर्टेंस दिया है चारित्र्य को, शील को इतना इम्पोर्टेंस दिया है. आप जब हम जाके पढ़ते हैं नॉट ओनली अबाउट द गुरु, उसका चारित्र्य कैसे होना चाहिए, दे हैव गिवन कि स्थपति जो है उसका चारित्र्य कैसे होना चाहिए, राजा है उसका चारित्र्य कैसे होना चाहिए, मंत्री है उसका चारित्र्य कैसे होना चाहिए. जो these are all the influences. ये भारत के सिस्टम के जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए सबसे फर्स्ट थिंग इज सद्वर्तन. ये कल की ही बात है जो है ना क्या है उसका नाम, रणबीर का वो जो चल रहा है कांड, वो देख के हमें वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दिस कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वहाँ पे whoever is the influencer, that influence का सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि he should have a good character, सद्वर्तन होना चाहिए. और गुरु उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए. and along with that he should have अध्यापन कौशलम, he should be able to have that knack for teaching, and he should be among the शिष्य. तो ऐसे ये चारों गुण गुरु में होने चाहिए. गुरु की बात की है, वैसे शिष्य की भी बात की है. शिष्य कैसे होना चाहिए, गुरु के 4 गुण बताए, शिष्य के लिए तो उससे भी अधिक गुण बताए हैं. शिष्य के लिए बताया है कि शुश्रूषा, श्रवणम, लिसनिंग, चैव धारणम, ग्रहणम, imbibing the knowledge, धारणम, remembering that knowledge, and उसका ऊहापोह करना, उसका एनालिसिस करना चाहिए, and उसको प्रज्ञा भी चाहिए. तो ये सारे गुण जिसमें है वो विद्यार्थी बन जाता है, विद्यार्थी. एंड इसके साथ साथ कौन सिखाने के लायक नहीं है ये भी बताया है कि नॉलेज शुड नॉट बी गिवन टू अशिष्य. तो अशिष्य कौन है कि जो who is not ready to take the efforts to learn, and who does not have a thirst for knowledge, and who does not respect the teacher who is giving that knowledge. These students do not deserve to, वो पात्र नहीं है ज्ञान ग्रहण करने के लिए, वो पात्र नहीं है. And the teaching process कैसी है, it is the guru teaches only 1/4. One shouldn't expect कि मैं क्लास में जाके बैठूंगा and the guru will teach me everything 100%. 1/4 comes from the guru. 1/4 comes from self-study. 1/4 comes from discussions with
fellow students. And when you start applying that knowledge, the rest one fourth comes with experience. So it might or might not come at all. तो ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है. इसके साथ साथ न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन में इट इज लाइक अबाउट हाउ टू लर्न. मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इवन बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग वी शुड लर्न न्याय दर्शन, कि इसमें क्या क्या है. कि one thing in that learning process who is included is the learner. The learner is included in the learning process, pramata. And then there is prameya. What is the subject of your learning? Who is learning? And how? What is the praman? What are the sources of learning? And when we look at the modern research और उसके लिए क्या क्या बताया गया है, we will find that here also कि प्रमाण क्या है. तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, where you get first hand knowledge from your sensory organs, from the primary sources. Then anuman hai, reference in inference hai. And then lastly there is the shabd or the Aktodesh, where you take the word of the subject matter expert about a particular thing. And how to learn is through questions. ये तो इतनी अलग बात है भारतीय एजुकेशन की कि we were taught you should sit like this in the class without asking questions. But even if you look at Mahabharata, you look at Ramayana, you look at Bhagavad Gita, look at Upanishads, look at Puran, all of this starts with a question. It starts with a Shrota who wants to learn something, who has a thirst for knowledge. वहाँ से वो यात्रा शुरू हो जाती है. And then we have, like for example in Bhagavad Gita, we have Arjun who is asking questions. And Krishna also, he encourages Arjun, saying that Tadriti pranipatena pariprashnena seva. Yeah, you ask me questions. But how you ask questions? You ask questions with humility. And then प्रश्न पूछ के आप ज्ञान सेवन करो कि thus this is the way of learning. And it goes ahead with what type of questions you will ask. Here, take these questions. You ask this question: Katham, Kim, Kimartham, Kasya, Kada, Kutra. So various questions. These are the questions that you can ask to learn something. There is a very deep section about methods of teaching as well. How will you teach? तो इसमें स्वाध्याय तो है, that is self study. इसके साथ व्याख्यान है, where you go and listen to somebody. उपाख्यान है, उपव्याख्यान है. तो उपव्याख्यान is teaching with the aid of illustration. So this illustration can be pictures, this illustration can be a story, this illustration can be a video, this illustration can be a PowerPoint presentation. तो ये उपव्याख्यान हो गया. And then there is प्रश्नोत्तराणी. Again, वो जो Socrates का method of teaching है, that is the प्रश्नोत्तराणी. It is through dialogue. It is through teacher asking questions, student asking questions, and then through that dialogue the learning happens. And then there is प्रयोग, doing experiments and learning through experiments. ये देखा तो हमको लगेगा कि this is modern teaching, but these are the methods of teaching which come from the Indian education systems. And even when we look at the types of subjects which are taught in the education system, they're huge. मतलब it is not just कि वेद सिखाए गए हैं या भाषा सिखाई गई है, but we find that what is taught is इसमें इतिहास है, इसमें धनुर्वेद है, इसमें आयुर्वेद है, इसमें एस्ट्रोनॉमी है, इसमें लॉजिक है, दर्शन है, ज्योमेट्री है, शुल्ब सूत्र जैसी ज्योमेट्री है, there is छंद शास्त्र, so many subjects. So मतलब ये नहीं कि गुरुकुल में जाते हैं तो सिर्फ वेद सीखने के लिए जाते हैं. These are the various topics. ये तो बस I'm just giving that which is tip of the iceberg करके. तो इतना सब कुछ इतने सारे सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं. एंड टुडे व्हेन वी लुक एट कि ये जो गुरुकुल सिस्टम है ये तो पूरा almost destroy हो गया. It still lives on, but it still lives on in some places, in some small pockets, and those pockets are the music schools.
कि आज भी वो जो घराना स्कूल ना, तो गुरु का कुल, तो म्यूजिक में वो अभी भी चालू है, गुरुकुल सिस्टम चालू है कि बच्चा जाएगा और गुरु से सीखेगा। एंड इवन व्हेन वी लुक एट द लाइफ ऑफ पंडित भीमसेन जोशी फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने तो गुरु के घर में जाके ही डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेवा, बर्तन मांजना है, घर साफ करना है, कपड़े धोने हैं, एवरीथिंग। एंड द थिंग इज, ये जो सिस्टम है, दिस गुरुकुल सिस्टम, इट स्टिल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस जेम्स, it continues to produce gems from in those different areas. तो ये एक this is a very high level introduction to the Indian education system. And ये जो education system है, इसमें ये विद्या के बारे में जो कहा गया है, दिस इज ऑल फॉर गेनिंग विद्या, विद्यार्थी। तो नॉलेज के बारे में ये बहुत ही सुंदर सुभाषित है, विच आई लव एंड लाइक टू शेयर, कि ये विद्या क्या है। तो विद्या ये धन है, ये कैसा धन है जो न चौर्य हार्यम, कि चोर इसे हरण नहीं कर सकता, न राजहार्यम, इट कैन नॉट बी टैक्स्ड, न भ्रातृभाज्यम, कि इट इजंट समथिंग दैट योर सिबलिंग्स विल आस्क फॉर देयर शेयर इन दिस वेल्थ। एंड ये विद्या ऐसी है, ये धन ऐसा है, विद्या ये ऐसा धन है जो देने से बढ़ता है। सो this is what vidya is, and what this kind of sessions that we are having, it is actually doing, it is increasing the vidya. And lastly we come to what is the purpose of education, why is this being taught? Because शिक्षार्थ प्रवेश एंड सेवार्थ प्रस्थान, हम जो भी काम करते हैं अपना काम अच्छे से करना, यही समाज की सेवा है। और ये करना कौन सिखाता है? तो वो एजुकेशन सिस्टम सिखाती है। तो स्कूल में बच्चे क्यों आना है, कॉलेज में बच्चों ने क्यों आना है? तो शिक्षा लेने के लिए, शिक्षार्थ प्रवेश। और वो वहाँ से जब प्रस्थान करेंगे, वहाँ से निकलेंगे अपने स्कूल्स, अपने क्लास से, अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से निकलेंगे, तो why they are going out for सेवा। किसकी सेवा? तो समाज की सेवा। हम जो भी करते हैं वो अच्छी तरह से करना, यही सेवा है, सेवार्थ प्रस्थान। And yeah, I think this is about it, what I wanted to put forth. We can have a short discussion if we have time, and what are the things that we can take, what is it that we can maybe implement. मतलब इतना IKS सीखना है, तो इसमें से अगर कुछ हम what is it that we can take back, what are the takeaways, ये अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। व्हेरी नाईस सेशन मॅडम। फ्रेंड्स, you. कोणाला काही फीडबॅक द्यायचा आहे, काही विचारायचं आहे? हा मॅडम, हा बोला सर। जी, म्हणजे आपलं इतकं वैभवशाली, आपली इतकी वैभवशाली परंपरा होती। हेलो, हाँ सॉरी, मैं मराठी में बात कर रहा हूँ। मराठी समझते ना मॅडम? हाँ हाँ समजते। आपली एवढी जर वैभवशाली परंपरा होती, तर सोशल रिफॉर्मर्स लोकांची गरज का पडली आपल्याला?